So like take the steps as like programming is like simply going from destination A to destination B. Understanding is you're finding a destination B. Analyzing is you're finding your paths. And developing is like you're finding a very particular path that is going to take you there. And coding and implementation is like you're actually sitting in the vehicle and you're driving till there. That is your coding and implementation. And this includes algorithms and this includes programs. Okay? Do you understand this much? Fine? Okay. Now, इतना सारा तो प्रोग्रामिंग के बारे में I said. What do you think is a program? Layman terms. कुछ भी. अभी तक इतना प्रोग्रामिंग and algorithms and stuff. What is a program? What do you think is a program? For what? By instructions, right? What? What does this instructions do? Programming are just a set of very detailed instructions that you give to a computer in a computational language. कोई ऐसी वैसी लैंग्वेज नहीं, कंप्यूटेशनल लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में आनी चाहिए. नहीं है तो लिख के कोई फायदा ही नहीं है. ठीक है? Okay. Now there are few basic rules that C program has. First of all, C में जो भी लिखते हैं, whatever program that you are writing is small caps because C is a very case sensitive language. अगर आपने variable A को कोई value दी, capital A, and then you want to input small a, then you like use small a afterwards. So capital A और small a की value same नहीं आएगी because C is a very case sensitive language. Second one, हर एक statement except of course hash include and hash जो भी use किया, उसके अलावा whatever the functions that you define or whatever the statements that you write should have a semicolon at the end. That is how you know the sentence has terminated. जब C कोई भी प्रोग्राम रीड करता है वो सेंटेंस बाय सेंटेंस रीड करता है. अगर उसको पता नहीं चलेगा कि सेंटेंस टर्मिनेट हो गया, so how will he move on to the next sentence? वो नेक्स्ट सेंटेंस कैसे इम्प्लीमेंट करेगा? So you should always include semicolon at the end of your statements. And space third rule. C में spaces का कोई ये नहीं होता. You can give 5 spaces, you can give nil spaces. ना कुछ भी नहीं. It does not like C ignores all the spaces just like it ignores all the comments. And C is a very free form of language. मतलब you जैसे if you are writing a program, you write one statement, you write second statement, you write third statement. जरूरी नहीं है कि you have to write one by one. जरूरी नहीं है. Once you terminate a sentence over here, you can continue writing the program forward. This is called that is why C is called a free form of language. Okay. Those are the 4 rules. Now, there are a program has a structure which I'll tell you once I write a program over here.
ऑलराइट, एल्गोरिदम है ना। मैंने पहले भी मेंशन किया, जो भी एल्गोरिदम है उसके हर एक स्टेप के इक्विवेलेंट प्रोग्राम में कुछ ना कुछ लाइंस होगी पर्टिकुलर। मतलब स्टार्ट के लिए कुछ लाइंस, रीड इनपुट के लिए कुछ लाइंस, एक भी स्टेप हम मिस नहीं कर सकते, हर एक स्टेप के लिए लाइन होगी। एंड आई एम गोना राइट अ प्रोग्राम हियर, यू टेल मी कौन सी लाइन कौन सी स्टेप को होगी। जैसा भी किया लिखी है ना प्रोग्राम, वैसे आपको पेपर प्रोग्राम लिखने हैं विद आउटपुट। जैसे आप टाइप करते हो तो आपको पेन पेपर की भी आदत डाल लो, सेमीकोलन है, ओपन करली ब्रैकेट्स है, कॉमास है, ये सब चीजें मिस नहीं होनी चाहिए। आपका ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि राइट अ प्रोग्राम फॉर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, 5 ऑपरेटर्स है, तो आपको ये पूरा प्रोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा पेन पेपर के थ्रू। मतलब ऐसा नहीं कि आपको 50 मिलेंगे और आपको प्रोग्राम सही है या गलत है वो देखोगे कि एरर्स कहाँ है। एग्जाम में आपको ऐसा प्रोग्राम लिखना है विद इट्स आउटपुट, ठीक है। और ये जो अभी आप देख रहे हो फ्रॉम एल्गोरिथम टू प्रोग्राम, ये क्वेश्चन क्यों नहीं आएगा, लेकिन आपको ये एल्गोरिथम सेपरेटली लिखने आ सकता है, ये प्रोग्राम सेपरेटली लिखने के लिए आ सकता है, या फिर वो जो पहले 4 स्टेप्स हैं तो उसका टाइटल है स्टेप इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के 4 स्टेप्स है, तो ये 4 स्टेप्स आपको एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम में अलग से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। जो लेटेस्ट पीडीएफ लास्ट वाली भेजी है ग्रुप में, उसमें इसका डिस्क्रिप्शन है गिवन, ठीक है। यहाँ पे आपके बोर्ड पे 3 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, आइदर एल्गोरिथम इनको बोल सकते हैं या फिर सिर्फ प्रोग्राम बोल सकते हैं, नहीं तो फिर वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एमएससी एज वेल एज एंड सेम एग्जाम दोनों की बातें कर रही हूँ। क्वेश्चन समझ में आ गए, आंसर्स कैसे लिखना ध्यान में आ गया। अगर प्रोग्राम बोला है तो आउटपुट इज रिक्वायर्ड, आपके 1 या 2 मार्क डायरेक्टली कट हो जाएंगे अगर आपने प्रोग्राम लिखा है और आउटपुट नहीं लिखा है तो, ठीक है। कंटिन्यू। तो स्टेप 1 स्टार्ट, क्या लगता है मुझे कितने कौन से लाइंस स्टेप 1 की करस्पॉन्डिंग है, इक्विवेलेंट है? नो स्टेप 2 क्या है? रीड इनपुट पैटर्न्स। कौन से कितने आएंगे इसमें? ये कौन सा? डिस्प्ले वैल्यू 4 ओके, तो
हर एक स्टेप की इक्विवेलेंट कुछ ना कुछ लाइन से जो होती है, एक भी स्टेप हम मिस नहीं कर सकते। अब जब भी सी प्रोग्राम रीड करेगा, स्टार्ट से रीड करता है, प्रीप्रोसेसर कमांड, लाइब्रेरी इंक्लूड हुई, मेन फंक्शन खुला, नाउ वी हैव इंटीजर, वेयर डेटा टाइप है, वेयर डिफाइनिंग ए बी सी डी कौन से टाइप के वेरिएबल्स है, तो इसमें बस इंटीजर होंगे। तो जब सी ये वाला ये पर्टिकुलर लाइन रीड करती है तो मेमोरी में whatever memory that the C is using right now, उसमें it will create four यहाँ पे 4 वेरिएबल, तो 4 blocks of memory it will create, क्योंकि अभी तो हमने कोई वैल्यू डाली नहीं है ना, डाली है क्या, नहीं, राइट। So it's gonna open up 4 blocks of values, the A, B, C and D, ओके। अब जैसे जैसे हम इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, अब इसके हर एक एड्रेस होते हैं ना, ऐसे बिना कोई भी खोले पता कैसे चलेगा, अगर हमने ए में वैल्यू डाली है वो गलती से बी में चली गई तो कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलता ना। तो हर एक इसके एड्रेस होते हैं, तो इसलिए हम जब हम स्कैनर लिखते हैं और ये लिखते हैं, सो दिस एंड आई डोंट नो व्हाट इज कॉल्ड, बट व्हाटएवर दिस इज, ये इज एम्परसेंड, हाँ। So this is basically the address of A. तो जो first A है वो इसमें वैल्यू जाएगी A की, whatever suppose give me an input, easy input 8, तो जब हम इसमें input डालेंगे पहला नंबर 8, तो this will go on 8, second input I give 2, इसमें जाएगा। This is how एक करके जाएगा। पहले तो he read this line की correspondence, he opened up all this the C program, he opened up all these blocks with their addresses. उसके बाद now it has the print output screen में they'll show the print whatever is there inside it, उसके बाद whatever values we give वो फिर उस particular memory block में assign होंगे, then they'll perform the arithmetic operations, the arithmetic operations. This is division, this is modulus. Division gives the quotient, modulus gives the remainder. Then जब okay, another thing, जब C program perform करता है especially for these kind of things, it reads from right to left. तो पहले he will do this, A divided by B is gonna give us 4. Then उसके बाद यहाँ पे वैल्यू असाइन होती है, it's not C is equal to A by B। अच्छा ठीक है, अब A और B की वैल्यू डालना नहीं, पहले A by B परफॉर्म होगा, फिर वो वैल्यू C को असाइन होती है, ओके। So this is then it will give 4 here and 0 because the remainder is 0, and then it will display the command and then end, okay, and अब ये return 0 because I used end main, you can use void main too, void main के लिए you don't have to write anything over here, but अगर हमने void main use किया और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, so they'll display the output for like 1 second max. So get ch that you use, get ch brackets, it tells the computer like the output screen to hold the output, and when you press a key उसके बाद it clears the screen. Okay, that's it.